Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, Good ma'am. morning, morning. madam. Good morning. Good morning, ma'am. Today we are going to discuss a very important topic that is related to our online education. And we are very much familiar with this topic, SWAYAM, SWAYAM. You all have heard this term, and we have prepared the proposal for that also to implement the courses on SWAYAM. In my department, Department of Education, Aligarh Muslim University, Aligarh also framed two refresher course on SWAYAM, one for environmental education and another for teacher training institutions for ICT. And our resource person, Dr. Aram Khan, is very much expert in this art of doing this SWAYAM platform. She has already done a lot of work. She was also resource person of my refresher course, and very good lecture she delivered there also. Dr. Aram Khan is associate professor in IASC Jamia Millia Islamia. Before that, she was in CIET, NCERT. She has lot of experience of school education, teacher education, and apart from this, she has also worked for surveys. So she is really a good expert, and we can say that she is a suitable person for this topic, SWAYAM. So I welcome Dr. Aram Khan in this session, and really happy to see you here. And I request you kindly deliver your lecture. And one thing more, that our participants are from different universities and colleges, and they are teaching over there. They are not only from education discipline, but they are from different discipline. And so this is a multidisciplinary group of participants, and they are very active, dynamic and versatile. They very curious to know more about the world around us. So really appreciable from the side of the participants. And I also welcome you once again and request you kindly deliver your lecture. Thank you. Thank you so much, ma'am. First of all, I would like to thank the entire organizing committee, and the first time goes to Nasreen ma'am and the director of NLTC, the entire team which is behind the organization of the program. Uh, as ma'am has just mentioned that I have got the opportunity to work with her in two of those refresher courses. I was at that time associated with the courses as co-faculty, and I was recorded lectures also in both those refresher courses. For at that moment, it was known as the another kind of brand name, which was Arpit, but now it is like considered as the part of the Swayam courses itself. So that was the beginning of the Swayam courses. At that moment, we were developing those two, and I got associated with the Swayam project when the Swayam project was getting initiated. At that moment, I was fortunately with the CIET, Central Institute of Educational Technology of NCERT. So it was around 2015, and the entire initiative of Swayam was getting developed. So I was fortunate enough to be the part of the team which was developing the Swayam platform itself. So I know things which are very much related to this platform. The meetings which happened in AICTE, I was supposed to attend with the team. So even the first version, because right now the version which you see of the Swayam platform, it is the Swayam 2.0. But that at that moment it was the Swayam 1, and there were too many institutions which were all together developing the platform. So we were playing the role, actually dual role. One was the role of the end user, and also the role of the creator. So both the perspectives were taken care of, that if there is
platform which student is going to use, how good it will be for the student, and what exactly will be the better thing if the course creator is going to develop a course. So teacher and students, both perspectives were taken care of. So my session today is related to Swayam, and it is a topic which is now known to everyone. But I will be going with an idea that if there is a single participant who is not having the basic idea, then a little bit time I'm going to spend on the introduction of the Swayam platform, how it came into being, what was the history behind, like, because there it has got a history, although the history is not very very old, but still there is a history. So a little bit of that know-how, and then we will go live on Swayam and we will see what exactly is there. I also will be letting you know the way in which the structure of courses on MOOCs are there. And suppose you have got this point, this opportunity at some point of time that you are supposed to develop a MOOC. Then what exactly will be the design which you are going to follow? I have got around my stake in around 7 courses on Swayam. India's first PG course in education, that was Educational Administration, Management and Leadership in School Education. That was developed by me and my team. It was launched by the UGC, and for 2 cycles it ran. But after that, because I shifted my base to Jamia, so right now the course is not actually running. And the 2 courses of ARPIT for AMU, then there were 2 courses of chemistry for school level, because NCERT deals with school level. So for 1 course for 11th, 1 for 12th, and then there were courses on biology. So all these courses were like some of the part I have done. So this is something which was just to give a basic information about myself. Now I'm going to show you one PPT which I have created, and then definitely we will move to the Swayam platform altogether live. Just a second. So just let me know one point, that is it is it okay if I go bilingual, or shall I continue in English only? Bilingual, ma'am. Bilingual. It's Okay, bilingual. ma'am. It's okay. Bilingual. Bilingual. Fine, 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 fine. I understood. So the first point, which when we are talking about MOOCs and Swayam comes into being, is this particular slide, which talks about the Digital India campaign. This is the essence behind the schemes, the different projects which came into being in the decade, the last decade, and then a little bit before that. So Digital India campaign, which came in the year 2015, this was the time when the government was very enthusiastic in terms of कि हम किस तरह से इंडिया के जो गांव देहात के इलाके हैं, those areas which are considered as rural, उनको हम कैसे कनेक्ट कर पाए हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से। ये एक आइडिया था, एक सोच थी कि हर कोई एक प्लेटफॉर्म पे आ पाए, चाहे वो शहर में रहता हो या वो गांव में रहता हो। इस आइडिया के साथ ये डिजिटल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया था 2015 में। और इसका जो एक बेसिक आइडिया था, वो पहली उसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो एक तो ये कि सबसे पहली चीज तो ये कि हम सारे के सारे जो गांव के और शहर के इलाके हैं, उन सबके जो लोग हैं
उन सबको जोड़ पाए। और जोड़ने का तरीका क्या होगा? हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क। उसके बिना लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। अब अगर हमें किसी को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क प्रोवाइड करना है, फॉर दैट पर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब डिवाइसेस, वो डिवाइसेस, वो मशीनरी जिसके बिना वो कैसे यूज करेंगे, वो यूज ही नहीं कर सकते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मान लीजिए हम डेवलप कर दिए, वो पूरा प्रॉपरली सारी मशीनरी आ गई, उस मशीनरी पे और लोग कनेक्ट भी हो गए इंटरनेट से। अब उस पूरे सेटअप पे जब हम कंटेंट डिलीवरी की बात करते हैं, जो कंटेंट है वो अगर अच्छा नहीं है, वो अगर अप टू द मार्क नहीं है, तो भी सारा का सारा आइडिया ड्रॉप ही हो गया एक तरह से। मतलब जो जो चाह रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया। तो तीन चीजें थी, एक तो था इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा था कि आपको हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ देना है सबको, और तीसरा था कि बेस्ट पॉसिबल कंटेंट फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल टीचर्स हु आर टीचिंग इन दोज इंस्टीट्यूशंस, इन द एपेक्स बॉडीज। हर एरिया में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एपेक्स बॉडीज हैं। उन लोगों, वहां पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं, they are considered to be the best of the best. Now, if the content is created by them, obviously that content is going to have some stake. वो कंटेंट कैसे मिले एक बहुत ही रूरल बैकग्राउंड के बच्चे को? पॉसिबल ही नहीं होता था। क्या तो उस बच्चे को आना पड़ता था, किसी तरह से भी करके मैनेज करके वो आता था अपने गांव से निकल करके बड़े शहर में पढ़ने के लिए, जो कि हर किसी के लिए नहीं पॉसिबल। सो इसका ये जो जब डिजिटल इंडिया कैंपेन आया, तो उसके तहत बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बने जिनसे कि ये पॉसिबल करने की कोशिश की गई। ये तो था फर्स्ट जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल बिंदु है वो। इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग पॉपुलरली MEICT भी कहते हैं। ये क्या है? ये वो तो डिजिटल इंडिया का कैंपेन था, एंड दिस इज बेसिकली अ स्कीम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि हायर एजुकेशन के लिए काम करती है ना। हायर एजुकेशन के लिए ये सारा जो काम इनका है वो हायर एजुकेशन के लिए होता है। इसी के पैरेलल स्कूल एजुकेशन के लिए ICT एट स्कूल स्कीम है। स्कूल एजुकेशन में कोई भी काम होना होगा, उसकी जो फंडिंग होगी उसको वो कहाँ से गवर्न होगी? ICT एट स्कूल स्कीम से। और हायर एजुकेशन में जो काम होगा वो उसकी जो फंडिंग होगी वो NME-ICT से होगी। दिस वाज बेसिकली डिसाइडेड। नाउ मैं आपको ये चीज क्लियरली बता दूं, स्वयं की जो शुरुआत हुई थी वो नीचे से नहीं हुई थी, मतलब स्कूल एजुकेशन से नहीं हुई थी। लाइक द बेसिक स्वयं इनिशिएटिव took into place from another initiative जिसका नाम ये EPG पाठशाला और हायर एजुकेशन। इसमें एक स्लाइड अभी स्किप किया है, मैं वापस उस पे जाऊंगी। शुरुआत यहाँ से हुई थी। दिस इज एन इनिशिएटिव, लाइक राइट नाउ दिस प्रोजेक्ट इज लाइक इट्स क्लोज्ड, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था, ये जब आया तो उस टाइम पे ये बेसिकली हायर एजुकेशन के लेवल पे आए, और इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट ने बेसिकली उस वक्त MHRD के नाम से हम जानते थे, अभी जो हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं वो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट थी। और उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट में 77 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को चूज किया गया जो हायर एजुकेशन लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। और हायर एजुकेशन में भी PG लेवल, ये भी याद रखिएगा, PG लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। PG लेवल के 77 सब्जेक्ट्स को चुना गया और बोला गया कि इसको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को बांट दिया जाए। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को बांटने का के लिए जो ये देखा गया कि किसकी एक्सपर्टीज या किसका USP क्या है, कौन ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत अच्छा काम कर सकती है इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उसको उस सब्जेक्ट का जिम्मा दे दिया गया। और ऐसे करके 77 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में PG लेवल पे कोर्स डेवलप करने के लिए, बेसिकली कंटेंट डेवलप करने के लिए, कोर्स वर्ड तो उस वक्त तक था भी नहीं, हम लोगों को सिर्फ ये बोला गया था कंटेंट डेवलप करना है। I was there in CIT at that moment. CIT was not at all like NCERT is not considered as a university, but
एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है दैट वाज गिवन टू अस एट CIET, और इत्तेफाक से मैं ही उसकी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर थी। एजुकेशन का जो सब्जेक्ट था उसको हम लोगों ने, क्योंकि हम NCERT को यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं था, तो वी मेड अ लियाजन विद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, एंड द एंकर यूनिवर्सिटी became this institution, which is a higher education institution, University of Allahabad, and we were the developing member. और हम दोनों के मतलब collaboration करके we developed the content for the education subject. And what was at that moment told to us that you can identify different, like in the subject of education, PG level पे क्या होता है, MEd और MA, ये दो courses हैं जो होते हैं, ऐसे ही दूसरे subjects में भी MA होता है, MSc होता है, MCom होता है, ऐसे करके जो कोर्सेज होते हैं। ये बोला गया कि आप ये देखिए कि इस पर्टिकुलर कोर्स में, जो जैसे MA का कोर्स है, MA एजुकेशन को ले लें, तो इस पर्टिकुलर कोर्स में कितने पेपर पढ़ाए जाते हैं, और जो पेपर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि, जैसे सपोज किसी एक यूनिवर्सिटी में 5 पेपर पढ़ाए जाते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में अगेन कोई 5 है, तो ऐसे करके जो कॉमन पेपर्स हैं उनको, उनका एक असॉर्टमेंट बना लीजिए। अब ये सारे कोर्सेज 2-2 साल के होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ाया जाएगा, सेकंड ईयर में कुछ पढ़ाया जाएगा, तो वो जो पेपर्स होंगे ना, उन सारे पेपर्स की पूरी लिस्ट बना लीजिए जो कि डिफरेंट होंगे। अब MEd का हम लोगों ने कोर्स उठाया और MA एजुकेशन का, इन दोनों कोर्सेज में सिमिलैरिटी है, पेपर्स भी कॉमन है। तो हाँ, ऐसे हम लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट, इंडिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, साउथ में, नॉर्थ की, ईस्ट की, सब जगह की जो यूनिवर्सिटीज के सिलेबस है उसको उठाया, एंड वी आल्सो वेंट टू द वेबसाइट ऑफ NCD, उस पे जो मॉडल सिलेबस दिया होता है वो लिया, और वी हैव कर्ल्ड आउट एट दैट मोमेंट 16 पेपर्स, 16 पेपर्स अलग कर लिए। ये 16 पेपर वो पेपर्स थे जो अप्रोक्सीमेटली तमाम जगहों पे जो करिकुलम था, जो सिलेबस था, उसके अंदर जो कंटेंट था, उन सबको कवर कर रहे थे। तो ऐसे ही और लोगों ने भी किया, अलग अलग सब्जेक्ट में अपना एक सर्वे करने के बाद एक लिस्ट बना ली कि ये 15 पेपर्स हैं, या किसी में 16 है, किसी में 14 है, किसी में 10 ही है, किसी में 20 भी है, ऐसे करके पूरी लिस्ट लोगों ने बना ली। फिर बोला गया कि ये जो 16 पेपर्स हैं, जैसे हमारा जो 16 पेपर्स थे, इन 16 पेपर्स पे डिफरेंट लोगों की, पूरे इंडिया के और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो की एजुकेशन के कोर्सेज चलाते हैं, वहां से हम एक्सपर्ट्स को ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स को बुला करके उनकी मदद से वी कैन गेट द कंटेंट डेवलप। अब उसमें क्या था कि जो 16 पेपर थे, हर पेपर अपने आप में एक पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ टॉपिक्स था। तो जैसे एक पेपर का मैं नाम दूं, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन करके एक पूरा पेपर है। उस पेपर के अंदर हम लोगों ने जब टॉपिक्स को देखा तो उसमें भी ये देखा गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर जहां जहां पढ़ाया जाता है, सब जगह के सिलेबस को उठा लिया जाए और उसको एक बार पूरा प्रॉपरली ग्लांस थ्रू करके उसमें से कॉमन टॉपिक्स को निकाल लिया जाए। और उस वक्त ये एक जो बात हम लोगों को बताई गई थी वो ये थी कि आप 40 के बियॉन्ड मत जाइए, 40 टॉपिक्स को सेलेक्ट कर लीजिए। ये कहा गया था कि अगर आप 40 के बियॉन्ड जाते हैं देन द बजट विल बी अ डिफिकल्ट इशू, बजट में दिक्कत होगी। तो ये बोला गया कि देयर विल बी 40 टॉपिक्स व्हिच यू आर गोइंग टू सेलेक्ट एंड दीज 40 टॉपिक्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मॉड्यूल्स। उस पूरे कंटेंट को डेवलप किया जाएगा। जो मॉड्यूल का स्ट्रक्चर पीजी पाठशाला का था वो ये था कि हमें एक टेक्स्ट बनाना है, टेक्स्ट पूरा लिखित टेक्स्ट बनाना है 3500 वर्ड्स। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में मान लीजिए एक टॉपिक है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, पहला टॉपिक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्स्ट लिखना है। उस टेक्स्ट का जो वर्ड काउंट है वो 3500 वर्ड्स होना चाहिए।
उसमें प्लेजरिज्म वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहीं से भी कोई भी ऐसा नहीं हो कि किधर से उठा लिया गया, प्रॉपर लिखा हुआ एक 3,500 वर्ड्स का टेक्स्ट हो गया, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली लिखे हो, इसमें एक इंट्रोडक्शन हो, फिर उसमें बीच का जो हिस्सा होता है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं वो सब हो, और लास्ट में एक समरी। उस टाइम पे जो मॉड्यूल का स्ट्रक्चर था, 4 क्वाड्रेंट अप्रोच तभी भी फॉलो होती थी, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में जो पीजी पाठशाला के लेवल पे जो हम लोगों का मॉड्यूल का स्ट्रक्चर था, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा टेक्स्ट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में हाफ एन आवर का, ये 3,500 वर्ड का जो टेक्स्ट है, इसी के ऊपर बेस्ड हाफ एन आवर का हमें एक वीडियो लेक्चर डेवलप करना होता था, जो कि पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होता था। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था उस वीडियो से कि वो रिप्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट ना हो, कि उसी को पढ़ दिया गया और उसी की रिकॉर्डिंग हो गई, नहीं। इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ whatever is taught or whatever is written here in the text. So if a teacher is teaching, at that moment she is giving a lot of examples to explain certain things. So जब हम टेक्स्ट देते हैं तो उस टाइम पे बहुत से वो एग्जाम्पल्स आ नहीं पाते सब, लेकिन जब आप पढ़ा रहे हैं, जब आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप दे पाते हैं वर्बल लैंग्वेज में। सो दैट वाज द एक्सपेक्टेशन कि वो आधे घंटे का जो वीडियो होगा, that will be an extension or a kind of elaboration of whatever is given in the text. उसके बाद उस टाइम पे जो ईपीजी पाठशाला का थर्ड क्वाड्रेंट था, मॉड्यूल में जो थर्ड क्वाड्रेंट था, वो रिलेटेड टू था, उसमें हमें जो टेक्स्ट है और जो वीडियो है, उसमें जो भी टॉपिक डिस्कस किया गया है, उससे रिलेटेड हमें 10 से 15 क्वेश्चंस देने होते थे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे विद 4 ऑप्शंस। प्रॉपर उसमें इंस्ट्रक्शन होता था कि आपको 4 ऑप्शन वाला एमसीक्यू देना है। और चौथा जो क्वाड्रेंट था, दैट वाज द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड फर्दर रीडिंग्स, उसको लर्न मोर के नाम से जाना जाता था। अभी भी ईपीजी पाठशाला अगर आप गूगल पे टाइप करते हैं तो यू विल गेट नेविगेटेड टू द ईपीजी पाठशाला वेबसाइट, although the project is over, project is completed, it got completed in 2018 itself, but the website is there. अभी मैं जब लाइव जाऊंगी तो मैं आपको वो दिखाऊंगी, और उसपे वो सभी 77 जो सब्जेक्ट्स में कोर्सेज है ना, वो सब वहाँ पे वो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। हर एक सब्जेक्ट में आप ओपन करेंगे तो लिस्ट ऑफ ऑल दोस पेपर्स आ जाएगी, उनमें से पेपर को सेलेक्ट करेंगे तो हर पेपर के अंदर किसी में 40 मॉड्यूल है, किसी में 36 है, किसी में 35 है, ऐसे करके मॉड्यूल आ जाएंगे, और हर एक मॉड्यूल एक 4 क्वाड्रेंट अप्रोच को फॉलो करता है। तो आपको वीडियो लेक्चर टेक्स्ट सब मिल जाएगा, which is in public domain, and it can be used by anyone without any problem, because the content was released under a very specific license, which allows everyone to use the content, because it is developed for the usage purpose. गवर्नमेंट ने डेवलप ही इसीलिए किया है कि उसको सब लोग यूज कर पाए, तो वो वहां पे पड़ा हुआ है। अब देखिए, ये कंटेंट तो बहुत सारा डेवलप हो गया था उस टाइम पे। जब पीजी पाठशाला कंप्लीट हो गया तो इट वाज सीन दैट अरे इतना सारा मटेरियल है पीजी लेवल का, और अच्छा मटेरियल है, पूरे देश के लोगों ने मिलके उसको बनाया है, अच्छे टीचर्स ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है और बहुत पैसा भी लगाया है। अब ऐसा क्या किया जाए कि इस कंटेंट को हम सब तक पहुंचा सके। उस टाइम पे जो मॉडल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के, उनको चेक किया गया, और तब एक चीज ये देखिए, ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम शोज दैट कितने सारे मूव प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं, और इसमें भी और भी ऐड हुए होंगे। दिस इज समथिंग which is showing a very brief idea, और भी बहुत सारे, नो डाउट इसमें और भी बहुत सारे एडिशंस किए जा सकते हैं। इसमें इंडिया का एनपीटेल, एंड स्वयं यहाँ मैंने लिखा है, एनपीटेल का जो प्लेटफॉर्म है, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, दिस प्लेटफॉर्म it has got, like, this is a consortium of 7 old IITs
जो पुरानी वाली 7 IITs थी, उनका ये एक कंसोर्शियम, एक प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड लर्निंग। और ये लोग बहुत पहले से, ये 80-85 का जो दशक था, तब से ही they were in the process of developing, they developed small courses जो कि किसी छोटे टॉपिक के ऊपर हुआ करते थे, बट वो पूरी की पूरी जो फोकस होता था वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होता था, बिकॉज जो IITs हैं वो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो ह्यूमैनिटीज को थोड़ी कवर कर रही है। हालांकि IITs के जब जो बच्चे वहां पे इंजीनियरिंग करते हैं, जो कोर्सेज करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटीज का भी पढ़ते हैं। इसीलिए अब आप देखेंगे कि इवन NPTEL हैज गॉट द कोर्सेज ऑन ह्यूमैनिटीज, बिकॉज मैं अभी उसका हिस्सा हूँ, मैं आपको बताऊंगी कैसे। सो NPTEL में बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज बनाए हुए थे और उनके पास उनका अपना एक प्लेटफॉर्म था। प्लेटफॉर्म वो जगह होती है, या हम उसको आजकल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है कंटेंट को मैनेज करने के लिए, प्रॉपरली कंटेंट को डिसेमिनेट करने के लिए। आपको अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो फिर आप कैसे अपना कोर्स चला पाएंगे? तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है हमें कोर्स चलाने के लिए। उस प्लेटफॉर्म को हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि वो लर्निंग को मैनेज करता है। आपको अगर आपने 20 हफ्ते का कोर्स चलाना है और फर्स्ट वीक में आपको 2 मॉड्यूल देना है, कुछ एक असेसमेंट कराना है, सेकेंड वीक में कुछ ये करना है, थर्ड वीक में कुछ करना है, तो आप अपनी पूरी की पूरी जो ये प्रोसेस है कि किस वीक में क्या करवाने वाले हैं, ये पूरे 20 वीक का जो प्लानिंग है आप वो पहले ही कर सकते हैं। उस पूरी प्लानिंग को आप वहां लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में सेट कर देंगे। वो सेटअप आपका हो गया कोर्स लॉन्च होने के पहले ही। अब जब कोर्स लॉन्च होगा तो वो ऑटोमेटिकली चलता जाएगा जैसी सेटिंग आपने की है। एंड आजकल जब जो कोर्सेज चलते हैं तो उसमें लाइव इंटरेक्शन का भी सिस्टम होता है, तो वो भी पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि ओके इस दिन हर हफ्ते के सपोज वेडनेसडे को शाम के 4 बजे जो टीचर है, कोर्स के जो मेंटर हैं, दैट फेलो इज गोइंग टू हैव अ लाइव इंटरेक्शन ऑफ 1 आवर। जो चैटिंग होती है उसमें चैट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स को तो कभी भी लिख सकते हैं, जिसको जो टीचर है वो पीरियोडिकली चेक करेगा और उसको उनको आंसर करेगा। लेकिन जो ये लाइव इंटरेक्शन है उनके लिए भी उधर स्कोप होता है। तो ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड करके रख दिया जाता है। तो जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना वो इन चीजों को मैनेज करते हैं। हमारे देश में NPTEL का प्लेटफॉर्म था पहले से, स्वयं तो बहुत बाद में आया। तो ये चीज जो है देखी गई कि अच्छा किया क्या जा सकता है। अब ये जो PG कोर्सेज इतने सारे डेवलप कर लिए गए, इसके लिए क्या? तो फिर ये देखा गया कि और देशों में क्या चल रहा है। जो दूसरे देश हैं उनमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं, जिसमें से कोर्सेरा का नाम आप सबने सुना होगा। कोर्सेरा दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म माना जाता है। अच्छा, एक और कोर्स का प्लेटफॉर्म है जो बड़े पुराने टाइम से चल रहा है, जिसको हम मूडल के नाम से जानते हैं। मूडल इज अ प्लेटफॉर्म विच इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट, बट कोर्सेरा जब बात करते हैं तो ये बहुत वाइड स्प्रेड है। मूडल को इसलिए भी ज्यादा पहचान मिली क्योंकि वो उसका एक वर्जन है जो प्राइमरी वर्जन है, दैट इज बेसिक वर्जन विच इज फ्री। कोर्सेरा के ऊपर भी कोर्सेज, आप कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं और कुछ उस पे पेड कोर्सेज भी होते हैं। बेसिकली उसमें जो मॉडल फॉलो होता है वो ये होता है कि आप अगर सिर्फ कोर्स को, क्योंकि ये ओपन कोर्सेज है, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, तो सिर्फ कोर्स को अगर आपको करना है तो देयर इज नो एनी फी, बट इफ यू आर willing to get a certification then you need to offer a fee to the bodies. Right now they have made it fee based, but if you ask them to make you like a fee waiver तो वो कर देते हैं on the basis of the request and all. ऐसे और भी पूरे दुनिया में वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जो चल रहे हैं। ओपन edX, Udacity, ये सारे प्लेटफॉर्म्स वो हैं जो कि बहुत पॉपुलर है। हम लोगों ने जब शुरू किया था काम, स्वयं पे काम करने के लिए जो तैयारी थी, तो उसके लिए जब हम लोग सीख रहे थे तो वी यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ ओपन edX जो IIT बॉम्बे
गवर्न करती थी, तो दे गेव अस स्पेस ऑन ओपन एडेक्स. वी क्रिएटेड आवर डमी कोर्सेज ऑन ओपन एडेक्स ताकि हमें कोर्स बनाना आए, बिकॉज एट दैट मोमेंट कोर्स बनाने की प्रोसेस किसी को पता नहीं थी इंडिया, एनपीटीएल के लोगों के अलावा. तो जब हम लोगों के लेवल पे यहाँ जब स्वयं प्लेटफॉर्म बनना शुरू हुआ, उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट और एक और कंपनी थी जिसका नाम था विज IQ, ये दोनों मिल करके कर रहे थे. उसके बाद AICTE ने पूरा होल्ड किया, और फिर माइक्रोसॉफ्ट तो रहा लेकिन विज IQ वाज नॉट देयर. सो AICTE और माइक्रोसॉफ्ट ने मिल करके पूरा का पूरा स्वयं प्लेटफॉर्म को बिल्डअप किया, जो कि एनपीटीएल की तर्ज पे था. एक प्लेटफॉर्म होगा जिसपे कोर्स डेवलपर आएगा, अपना कंटेंट प्रॉपरली, वहां पे एक लाइब्रेरी होगी, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा, लाइब्रेरी में अपना सारा कंटेंट रख देगा बिफोर हैंड, एंड देन देयर विल बी कोर्स स्ट्रक्चरिंग व्हिच विल बी डन. ये सब करने के बाद फिर हम जब कोर्स को लॉन्च करेंगे तो बिना किसी हैसल के हम यूजर को जितने हफ्ते का भी कोर्स है वो कंटेंट दे पाएंगे. तो ऐसे करके ये जो प्लेटफॉर्म्स थे, इन सबको उस वक्त चेक किया गया, और फिर जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उसकी स्ट्रक्चरिंग हुई. ये दो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट्स रहने दिए हैं. ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं, एक तो ये ई आचार्य का है और दूसरा इम्प्लीमेंट सेंटर की जो होम पेज है उसका है, क्योंकि इस पे भी, इन दोनों पे भी जो स्वयं का कंटेंट है और स्वयं का जो भी नेविगेशन है वो इनके थ्रू भी हो सकता है. मटेरियल को इधर भी डाला गया था और इम्प्लीमेंट सेंटर पे जाकर के, क्योंकि बाद में जो सारा का सारा काम था वो इम्प्लीमेंट सेंटर के थ्रू होने लगा. जो भाई साहब वहाँ पे एक जगह है गुजरात में, वहां से इम्प्लीमेंट सेंटर गवर्न होता था, और उधर से ही स्वयं को के सारे जो कोर्सेज हैं उसके लिए लोगों को अथॉरिटी दी जाती थी. इवन अभी भी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए यू कैन मूव टू इम्प्लीमेंट सेंटर साइट ऑल्सो, वहां से भी हो जाता है. लेकिन अब स्वयं के को गवर्न करने वाले जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी साइट पे जाके भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप फिल कर सकते हैं. अब आ जाते हैं हम जो स्वयं प्लेटफॉर्म इटसेल्फ के ऊपर. ये एक एक्रोनिम है, ये सभी लोग अब तो जान गए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड्स. और इसको बनाने में पूरा का पूरा जो स्टेक है वो MHRD उस टाइम पे थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ये दोनों जो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने मदद की. ये एक इंडिया का आप कह सकते हैं मूक्स को लॉन्च कर. देखिए, जो एनपीटीएल प्लेटफॉर्म है वो तो था, लेकिन उसके जो कोर्सेज हैं उनको हम मूक नहीं कह सकते. उस टाइम पे जो कोर्सेज हुआ करते थे, क्योंकि अभी एनपीटीएल भी स्वयं पे चला गया है. बहुत सारे कोर्सेज जो एनपीटीएल के हैं वो भी स्वयं पे आ गए. लेकिन जब एनपीटीएल का जो प्लेटफॉर्म है वो मूक प्लेटफॉर्म नहीं था, वो कोर्स प्लेटफॉर्म था. क्योंकि वो जो कोर्सेज होते थे वो सबके लिए नहीं होते थे, वो सिर्फ जो टेक्निकल लोग हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग के कोर्सेज करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो या डिप्लोमा कोर्स हो या डिग्री से रिलेटेड कोर्सेज, छोटे छोटे कोर्सेज, और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल, डिग्री लेवल तो गए भी नहीं थे वो लोग, वो कोर्सेज करवाते थे. तो स्वयं को हम एक ऐसा मूक प्लेटफॉर्म, इंडिया का पहला मूक प्लेटफॉर्म मानते हैं. मूक मतलब ऐसा कोर्स जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हो और वो सबके लिए ओपन हो. इट कैन बी डन बाय एनीबॉडी. सो द कोर्सेज ऑन स्वयं, दे आर ऑफ टू कैटेगरीज. एक तो है कि सेल्फ बेस्ड कोर्स है और आप जो भी चाहे उसको कर सकता है, और दूसरा है जो रेगुलर कैटेगरी होती है. रेगुलर मतलब उस कोर्स को अगर आप रेगुलर जो कोर्स है उसमें लिस्टेड जो कोर्सेज है रेगुलर कोर्सेज में, अगर आप उसको करते हैं तो आपका इवन जो क्रेडिट है, जैसे अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं एक पर्टिकुलर कोर्स जिसके अंदर एक पेपर है जो कि मूक के फॉर्म में अवेलेबल है, और आपने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि तुम चाहो तो मूक भी फॉलो कर सकते हो, मूक कर वो कोर्स स्वयं से कर लो, और उसका जो रिजल्ट, जो वहां पे एग्जाम वगैरह सब दे लो, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्रेडिट ट्रांसफर में अपने रेगुलर रिजल्ट में जुड़वा लो. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो जो स्वयं प्लेटफॉर्म है वो इंडिया का पहला इंडिजिनस आप कह सकते हैं
fully indigenous massive open online course platform. इसको ये रुतबा हासिल है स्वयं मूक प्लेटफॉर्म पहला है ये। जो होम पेज है वो ये। अब मैं थोड़ा लाइव चले जाती हूँ इसलिए कि मेरे पास जो पीपीटीज है इसमें है सब कुछ है, बट ज्यादा अच्छा है कि हम लाइव चले जाएं और वहां से आपको एक्सप्लोर करना ज्यादा आसान है। पीपीटी के बजाय लाइव इंसान जाने में ज्यादा सही रहता है। तो आई जस्ट मूव टू आई होप विजिबल होगा, सबको सब दिखाई दे रहा है इधर मेरा स्क्रीन। यस मैम, जी मैम, Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ma'am. देखिए मैंने गूगल पे टाइप किया था स्वयं, सिर्फ स्वयं टाइप कर दीजिए आप गूगल पे। आप जो फर्स्ट सर्च रिजल्ट है वो आपको स्वयं प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। ये आपके सामने जो अभी स्क्रॉल ये जो दिख रहा है, दिस इज द होम पेज ऑफ स्वयं। और ये जो होम पेज है, और आपको मैं बता दूं ये स्वयं 2.0 है। पहले जो स्वयं था उसका जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। शुरुआती दौर में बहुत सी चीजें इसमें कम थी जिसको बाद में ठीक किया गया और स्वयं 2.0 आया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें बहुत बेहतर हो गई हैं पहले के बनिस्बत। हम लोगों ने काफी स्ट्रगल किया था उस टाइम पे क्योंकि शुरुआत ही हो रही थी, सब कुछ सीख रहे थे, इंडिया का एक पहला एक्सपीरियंस था ये। तो बहुत सारी चीजें करने के टाइम पे दिक्कत होती थी, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया, स्विफ्ट हो गई है प्रोसेस। देखिए अगर एज ए यूजर आप स्वयं को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस पे जाके कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए साइन इन करना जरूरी है क्योंकि आप कोर्स लेने जा रहे हैं या कोर्स आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं। दो तरह से साइन इन होती है। पहली साइन इन होती है यूजर के पर्सपेक्टिव से या जिसे आप कह सकते हैं स्टूडेंट का लॉगिन, और दूसरा होता है टीचर लॉगिन। टीचर लॉगिन उसी को मिलता है जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फिल करता है और फिल करने के बाद उनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है और उन्हें कोर्स डेवलपर का जो क्रेडेंशियल है वो मिल जाता है। तब फिर जो टीचर है वो कोर्स डेवलपर बन जाता है, कोर्स क्रिएटर बन जाता है और वो आकर के स्वयं पे लॉग इन करके अपना एक पूरा पहले रजिस्टर करके कोर्स क्रिएटर का एक अकाउंट बना लेता है। वो अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट है जो यूजर है, मतलब जो स्टूडेंट है उसके अकाउंट से, क्योंकि वो कोर्स को क्रिएट, जो टीचर है वो कोर्स को क्रिएट करता है और जो स्टूडेंट है वो कोर्स को करता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सिर्फ इसे एक्सप्लोर करना है, आपको अभी ये नहीं पता कि आप टीचर बनेंगे इस पे या स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है, तो किसी साइन इन या किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इसमें जो ये इसका होम पेज है, इसको आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको यहाँ बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। देखिए जो सबसे पहली चीज आपको दिखाई देगी वो ये, दिस इज शोइंग द डिफरेंट लोगोज। ये सारे लोगो हैं जो कि उन इंस्टीट्यूशंस के हैं जो कि नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं। वो इंस्टीट्यूशन जिनको सिंगल पॉइंट हब बनाया गया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया के लिए, कि अगर आपको स्कूल एजुकेशन में सपोज मूक डेवलप करने का मन है तो आप किसे कांटेक्ट करेंगे? आपको एनसीईआरटी को कांटेक्ट करना है। अगर आपको आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन जो ब्रिज कोर्सेज है उस तरह का कुछ बनाना है, देन यू आर गोइंग टू कांटेक्ट एनआईयूएस। इफ यू आर विलिंग टू डेवलप कंटेंट फॉर यूजी लेवल नॉन टेक्निकल, then you are going to contact CEC जो कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन। आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज नॉन टेक्निकल वाले डेवलप करने आप इग्नू से कांटेक्ट करेंगे। आपको मैनेजमेंट के कोर्सेज डेवलप करने तो आप IIM बैंगलोर से करेंगे। ऐसे करके अलग अलग जो एक्सपर्टीज है लोगों की, इंस्टीट्यूशंस की, उसके हिसाब से जो कोर्सेज डेवलप करवाने का जिम्मा है उसको भी डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, बांट दिया गया। क्योंकि सेंट्रलाइज लेवल पे सब कुछ एक ही बंदा करे, एक ही यूनिवर्सिटी या एक ही इंस्टीट्यूशन करे, दिस इज नॉट पॉसिबल।
इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फिर उसको मैनेज करना, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक स्पेशल एक्सपर्टीज रखता है, उस एक्सपर्टीज के हिसाब से अगर काम कराएंगे ज्यादा अच्छे से होगा। तो इसलिए ये ऐसे करके बांट दिया गया। आपको अगर जानना है उस इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या कौन करता है, तो पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे ही लो। इसके बाद जैसे अगर मैं ये एक नया इसमें ऐड हुआ है, मैं इस पे INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसको अगर मैं क्लिक करूं, ये INI के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। ये अभी जो इंडिया में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाएगा। अभी यहाँ पे फिलहाल 2 हैं जिनको लिस्ट किया गया है। पहला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप ये कोर्स कर रहे हैं, और दूसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी में है। आप सब जानते हैं, मैं भी उधर की ही हूँ, तो ये देख करके बहुत खुशी होती है। दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यूपी के हैं, जो लिस्ट किए गए हैं इधर INI में। एंड देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट आगे आने वाले वक्त में और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि जो INI की कैटेगरी जिनको डाला जाएगा, खास करके इतनी IITs हैं, there will be a possibility that the central universities, the other central universities will also come into this category. But rest अभी इन्होंने यहाँ पे जो MOOCs हैं वो अभी इन्हीं 2 के लिस्टेड हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। बट 167 institutions will be under the category of INI, and in future they are going to launch the courses. फिलहाल इनके जो कोर्सेज हैं जो INI अभी लिस्ट किए गए हैं, अगर यहाँ पे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो कोर्सेज जो INIs ने लॉन्च किया है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। ये यहाँ पे ये पूरी कैटेगरी है कोर्सेज की, जो ये 2 INIs जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनके जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। देयर आर मेनी कोर्सेज, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, अभी भी काफी सारे कोर्सेज हैं, और इनको फिल्टर लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको जैसे अगर यहाँ पे आप ये फिल्टर साइड में फिल्टर के लिए स्पेस होता है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें कितने ऐसे कोर्सेज हैं जो रेगुलर है, तो अभी INI का फिल्टर है ऑलरेडी लगा हुआ, और उसमें आपने रेगुलर के ऊपर का एक फिल्टर और अप्लाई करा, तो अब इसमें से जितने सेल्फ बेस्ड कोर्सेज थे वो निकल गए, सारे के सारे रेगुलर कोर्सेज ही रह गए। इसमें और भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आप जो कोर्स का ड्यूरेशन मैं 8 वीक लिख देती हूँ, 8 वीक की। अब यहाँ पे सिर्फ वो कोर्सेज रह गए जो 8 वीक के, बाकी सब हट गए। देखिए बहुत कम, लिस्ट छोटी हो गई। ऐसे करके आप डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करके यू कैन see that what are those courses which are launched by these particular agencies. ये तो एक बात हुई। अभी मैं वापस होम पेज पे जा रही हूँ, क्योंकि अभी होम पेज पे कुछ चीजें रह गई। ये तो हो गई इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो इसमें ऐड हुआ है। उसके बाद इसके अलावा आप इनमें से और जिस पे भी आप चाहें क्लिक करके यू कैन गेट इनटू दैट पर्टिकुलर पेज एंड यू कैन मेक आउट कि वो इंस्टीट्यूशन किस एरिया में काम करता है, और वहां पे अगर आप उनके बनाए हुए जो मूव्स हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी उधर दिख जाएंगे। इसके बाद देखिए इस वेबसाइट जो ये प्लेटफॉर्म है, इसमें आप नीचे जब आएंगे तो ये थोड़ी और इंफॉर्मेशन बड़े डिस्क्रीट तरीके से प्रोवाइड करता है कि बेसिकली स्वयं करता क्या है और क्यों स्वयं पे जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ फीचर्ड कोर्सेज होते हैं, हर महीने के कुछ फीचर्ड कोर्सेज हैं जिनको माना जाता है कि बड़े अच्छे कोर्सेज हैं। वो फीचर्ड कोर्सेज को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है, कैटेगराइजेशन भी किया हुआ है, तो यहाँ से भी एक्सप्लोर करने में आसानी हो जाती है। और इसके अलावा इधर एक इनका नया फीचर है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स को बड़े प्रॉपरली कंप्लीट किया फ्रॉम स्वयं, they give their opinion about their experience on how they felt when they were studying स्वयं। तो वो एक ये फीचर है जो कि इसके यूजेबिलिटी को और कितना ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, कंड्यूसिव है, सबको बताने के लिए
यहाँ पे ये ऐड किया। तो अब ये हो गया इसका जो होम पेज है उसके बारे में। होम पेज पे ही जब सबसे ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये एक लंबी सी जो हेडर है उसमें कुछ चीजें हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू अबाउट स्वयं। अगर आप अबाउट स्वयं के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन, स्वयं क्या है, किसने बनाया, किस लिए बना, related to information which is related to all the national MOOC coordinators, सब सारी इंफॉर्मेशन इधर है, मौजूद है। यहाँ पे अभी INI इन्होंने ऐड नहीं किया, ये पुराना वाला ही डला हुआ है अभी, बट INI ऑलरेडी ऐड हो चुका है, होम पेज पे वो दिख रहा है। और इधर सारा कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्रेडिट ट्रांसफर इज ऑल्सो गिवन। क्रेडिट ट्रांसफर कैसे होगा, क्योंकि 2016 में यूजीसी ने एक रेगुलेशन दिया था और वो रेगुलेशन का जो लेटर था वो सभी यूनिवर्सिटीज में भेजा गया, क्योंकि हर साल एक वाइस चांसलर्स का जो एक समिट होती है यूजीसी करवाती है, उसमें ये क्लियरली बता दिया गया था 2016 की बात जो हुई उसमें बता दिया गया कि हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज को अभी रेडी हो जाना है फॉर ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज। और उसमें एक रेशियो बताया गया कि 40% जो कंटेंट है या 40% ऑफ द कोर्सेज जो स्टूडेंट है वो 40% पेपर, मान लीजिए एक कोर्स कर रहा है तो उसमें 10 पेपर्स हैं, तो 10 में से कोई 4 वो ऑनलाइन कोर्स से कर सकता है, 6 वो रेगुलर पढ़े, 4 वो ऑनलाइन से करे। तो ऑनलाइन कोर्स में, और वो स्वयं से होना चाहिए, किसी एक्सवाइजर से नहीं होना चाहिए, स्वयं से किए हुए उन कोर्सेज को जो, और एक चीज और है कि वो लिस्टेड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी उनकी यूनिवर्सिटी ने आइडेंटिफाई किए हुए होने चाहिए, उनकी यूनिवर्सिटी ने आइडेंटिफाई किया हो कि ये स्वयं पे, अगर आप MSc बॉटनी कर रहे हैं तो MSc बॉटनी के से रिलेटेड these are the 6 papers, ये this 6 papers are identified and they are listed in the university's brochure or whatever information यूनिवर्सिटी प्रोवाइड, उसमें लिस्टेड होने चाहिए कि ये 6 पेपर्स हैं, इनमें 6 में से कोई 4 आप ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, जितना लेना चाहो उधर से ले लो। उसको फिर आपको कॉलेज में नहीं पढ़ना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको आप स्वयं पे ही पढ़िए, उधर ही एग्जाम दीजिए, अपने मार्क्स वहां से क्रेडिट ट्रांसफर के जरिए आपके रिजल्ट में जुड़ जाएंगे। सो अगेन आपको उसका एग्जाम नहीं देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, वो स्वयं पे ही आप दे सकते हैं, बट बशर्ते कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने उन कोर्सेज को स्वयं पर से आइडेंटिफाई करके ऑप्ट कर रखा। ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी ने ऑप्ट ही नहीं किया और बच्चा वो कोर्स करने लगा, अब उसको क्या पता कि वो कोर्स के जो सारे रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी कर रहा है कि नहीं, उस केस में दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए ये जरूरी है कि स्टूडेंट वही कोर्स करेगा अपने रेगुलर कोर्स के साथ जो कि उनकी यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाई कर रखा, तभी वो CBCS में आता है। तो पूरा रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो क्रेडिट ट्रांसफर के से रिलेटेड है वो सभी इधर मौजूद है। इसके बाद देखिए जो अबाउट स्वयं है, और इसपे ना एक वीडियो भी है, जो ये सहस्त्रबुद्धि जी का एक वीडियो भी है जो उस टाइम पे AICT के डायरेक्टर होते थे, उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी है, तो ये भी आप नेविगेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है वो है ऑल कोर्सेज। यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो वो सारे के सारे कोर्सेज जो रन कर रहे हैं, और अभी क्योंकि मैंने कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया तो सब मिक्स्ड है। तो ये NCERT का कोर्स, ये आप देख सकते हैं NCERT का जो कोर्सेज हैं वो स्कूल लेवल के हैं। जैसे ये मैंने जिसके ऊपर अभी अपना कर्सर रखा है, ये अकाउंटेंसी का क्लास 11 का कोर्स है, पार्ट 1। पहली किताब जो 11th क्लास की है अकाउंटेंसी की, उसको पूरा ट्रांसफॉर्म किया गया है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट, और NCERT ने जो कोर्सेज अभी डेवलप कर रखे हैं वो 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए ही। ऐसे ही ये निटर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड टेक्निकल रिसर्च। ये जो निटर है, निटर के बहुत सारे सेंटर्स हैं, मुझे भी एक ट्रेनिंग मिली हुई है निटर चेन्नई से, और वो ट्रेनिंग जो मूक के ट्रेनर्स की ट्रेनिंग थी। तो उस ट्रेनिंग को करने के बाद जो कुछ लोगों को चुना जाता है, पूरे इंडिया से चुना गया था, और अभी भी
होता होगा। मुझे ये ट्रेनिंग मिली थी 2019 में। उसमें मुझे यूजीसी की तरफ से नॉमिनेशन मेरा हुआ था और चेन्नई में जाके ट्रेनिंग दी गई थी। तो मीटर जो है वो ट्रेनिंग देती है टू द ट्रेनर्स, दोज पीपल हु आर फर्दर दे कैन गो एंड ट्रेन अदर्स। टेक्निकल टीचर्स की ट्रेनिंग है तो बेसिकली वो हर चीज सिखाते हैं जो कि किसी भी तरह के टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में वो करने में, दूसरों की हेल्प करने में सक्षम बना देते हैं उन लोगों को जो लोग उनके यहाँ ट्रेनिंग पा रहे होते हैं। तो हमें जब हमारा जो एक पूरा ग्रुप था 26-27 लोगों का, उसको ट्रेनिंग दी गई और इसके बाद फिर इसके कुछ दिनों बाद ही फिर वी वर कॉल्ड फॉर वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हम लोगों को अलग अलग जगहों पे जाकर दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बताया गया कि बिकॉज यू आर नाउ ट्रेन सो यू कैन गो एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग। तो ये जो नेटर है दिस इज अ वेरी अपेक्स इंस्टीट्यूशन और इनके भी बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज है। एनपीटेल तो है ही, एंड आप देखेंगे अब एनपीटेल के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो ह्यूमैनिटीज में भी आपको देखने मिलेंगे। लाइक यू कैन सी दिस कोर्स, ये देखिए एडवांस कोर्स इन सोशल साइकोलॉजी। अब दिस इज अ कोर्स व्हिच इज ऑफर्ड बाय एनपीटेल बट इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी कोर्स, इट्स अ सोशल साइंस बेस्ड कोर्स जो कि एनपीटेल ऑफर कर रहा है, क्योंकि एनपीटेल ने अभी ह्यूमैनिटीज में भी अपना स्टेक कर लिया है। बहुत सारे कोर्सेज की जो मेरे भी बहुत से कोर्सेज हैं जो कि एनपीटेल का जो प्लेटफॉर्म है स्वयं प्रभा पे एनपीटेल और आईआईटी चेन्नई के चैनल्स हैं। तो उनका जो एक अलग वे है जिसमें वो कंटेंट डेवलप करवाते हैं और वो स्वयं प्रभा पे टेलीकास्ट होते हैं। तो मैं अभी तक 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ फॉर दी एनपीटेल आईआईटी चेन्नई, जो कि बीएड के कोर्स के ऊपर, बीएड के डिफरेंट पेपर्स है। जैसे पहला पेपर है वो चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग एंड टीचिंग है, उसके 46 मॉड्यूल्स बने हैं, 46 लेक्चर्स बने हैं बेसिकली। ऐसे ही दूसरा जो है वो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है, उसके ऊपर 33 वीडियोस बने। वो सब स्वयं प्रभा पे टेलीकास्ट होता है और उनका वेबसाइट स्वयं प्रभा की वेबसाइट के आर्काइव्स में डाल रखा है। उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर भी वो नजर आता है। तो ऐसे there are so many things which NPTEL is doing nowadays, जो पहले बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ ही जुड़े हुए थे, अब वो एक्सटेंशन कर लिया उन्होंने और वो सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, बिहेवियरल साइंसेज में भी। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट है और इधर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर लगाने के लिए पहला जो फिल्टर है वो आप नेशनल कोऑर्डिनेटर के हिसाब से लगा सकते हैं, जिसका भी आप चाहते हैं देखना वो यहाँ, जैसे मैंने अभी इसके पहले INI डायरेक्ट जाके दिखाया था, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। और अगर NCERT पे क्लिक कर देंगे तो जो NCERT के रनिंग कोर्सेज हैं वो सारे इधर आ जाएंगे। ये सारे कोर्सेज NCERT के डेवलप्ड कोर्सेज हैं। तो ये इस तरह से करके यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ कोर्सेज हियर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्वयं। फिर ये यहाँ से जाकर के आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोर्स रेगुलर है और कौन सा सेल्फ बेस्ड है। सेल्फ बेस्ड का मतलब है कि जो ऐसे कोर्सेज जो कि सर्टिफिकेट कोर्स होंगे, अपनी मर्जी से आप आज आपने एडमिशन लिया और वो मान लीजिए 6 महीने का कोर्स है तो आप उसको 2 महीने में भी पूरा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो और वो सर्टिफिकेट कोर्स होगा, क्रेडिट ट्रांसफर उससे नहीं होगा। जो रेगुलर कोर्स है वो रेगुलर कोर्स बिल्कुल रेगुलर कोर्स के जैसे होगा और उसमें प्रॉक्टर्ड एग्जाम होगा। प्रॉक्टर्ड एग्जाम कौन लेगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नाम सुना होगा आपने NTA का, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है हमारे देश की, मेजर एग्जाम्स जो है वो NTA कराता है। तो स्वयं के जो प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स हैं रेगुलर कोर्स के, जो कि CBCS में ट्रांसफर हो जाता है, रिजल्ट ट्रांसफर होता है, उनके मार्कशीट्स में जाकर के जुड़ता है मार्क्स, वो एग्जाम NTA कराता है। NTA पेपर बनवाता है, NTA कॉपी इवेल्युएशन कराता है और उसकी मार्किंग करवा के प्रॉपरली जो रिजल्ट है वो क्रिएट हो जाता है और फिर वो बच्चे के रेगुलर रिजल्ट के साथ जोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये तो प्रोसेस हो रही है फॉलो।
और इधर ये पूरा और डिटेल्स है, फिल्टर लगा करके आप इंफॉर्मेशन को और कंसाइज जो चाहिए वो आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर अगेन नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के लिए सेक्शन है जिसपे हम लोग बात कर चुके हैं, वही सेम चीज है, उसको थोड़ा डिस्क्रीट तरीके से यहाँ पे शो कर दिया गया। तो आपको अगर जानना है तो फिर से वापस पे जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं आ जाती हूँ लोकल चैप्टर्स के ऊपर। लोकल चैप्टर्स पे आप जब जाएंगे तो ये आपको एक दूसरी वेब पेज पे लेते जाएगा, क्योंकि इसका लोकल चैप्टर्स का एक पूरा अलग सेक्शन है। लोकल चैप्टर्स को अलग से यहाँ पे रखा गया है क्योंकि इसमें जो है लैंग्वेज ट्रांसलेशंस भी पूरा है। आपने देखा हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, वो भी ये बात करती है कि हमें जो हमारा कंटेंट है उसका ट्रांजैक्शन सबसे अच्छा हमारा जो हमारी मातृभाषा है उसमें होता है। तो जो भाषाएं हैं आप उनको, ऐसी भाषाएं जो अंग्रेजी के अलावा है, अंग्रेजी हिंदी के अलावा जो हमारी और अन्य भाषाएं, उन भाषाओं को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम स्टूडेंट को उसकी अपनी भाषा में, जो उसकी मातृभाषा है, उसमें कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और स्टैंडर्ड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो स्वयं अथॉरिटीज हैं उन्होंने कंटेंट को ट्रांसलेशन, हर कोर्स का डिफरेंट भाषाओं में ट्रांसलेशन भी करवाया है। और एक और प्रोसेस भी शुरू की गई है, क्योंकि 2016 रेगुलेशन के बाद स्वयं पे कोर्सेज को करना और वहां से क्रेडिट ट्रांसफर करवाना, दिस इज समथिंग जो कि एक मैंडेट जैसे बन गया है। तो अभी जो ये स्वयं अथॉरिटीज हैं, इन्होंने बेसिकली जो सेंटर्स बना, उन सेंटर्स को हम कहते हैं, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको ये लोग जो आम भाषा है उसमें स्पॉक भी कहते हैं, SPOC, वो बना दिया है। स्पॉक्स का काम ये है, जैसे कौन होगा SPOC, एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। अब जैसे मेरा ही बता दूं, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में हूँ, यहाँ पे जो SPOC है वो इंजीनियरिंग फैकल्टी के एक प्रोफेसर है जिनको SPOC बनाया गया, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी स्वयं पे जाकर के कोर्स डेवलप करना चाहता है, स्वयं पे कोर्स डेवलप करना चाहता है, या कोई ऐसा कोर्स है जिसको कोई डिपार्टमेंट ऑप्ट करवाना चाहता है, तो दैट से SPOC is going to be contacted. This fellow is having a direct stake, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उनको नॉमिनेट कर दिया, डायरेक्ट स्टेक विद these स्वयं एंड NPTEL अथॉरिटीज। वो उनके साथ कांटेक्ट करके ये जो पूरी प्रोसेस है इसको ऑर्गेनाइज करेगा। ऐसे ही हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में SPOCs बना दिए गए, जहां नहीं बने हैं वहां पे बना दिए जाएंगे, प्रोसेस जारी। लोकल चैप्टर से फायदा ये होता है कि चीजें डिसेंट्रलाइज होती हैं, चीजों का एक्सेस इजी हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा अगर कि कहाँ जाएं, किससे बात करें। भाई हर कोई जाकर के सीधे UGC के ऑफिस में तो नहीं चला जाएगा, दिल्ली में है तो फिर भी आसान है, और जगहों पे हैं जो दिल्ली से दूर है तो यहाँ पे ऑफिस का एक्सेस मुश्किल है। तो इसके लिए ज्यादा अच्छा हो कि उसको इस तरह से डिवाइड किया जाए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी एंट्री वहां पे होगी, वो उसके थ्रू ही जो भी नेशनल मूव कोऑर्डिनेटर है वो काम करेगा। तो इसके लिए लोकल चैप्टर्स को बनाया गया है। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो लोकल चैप्टर का मेंबर नहीं है और वो बनना चाहता है, तो उसकी भी पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई, जैसे ज्वाइन एज न्यू LC, न्यू लोकल चैप्टर। तो जो कॉलेजेस नहीं है लोकल चैप्टर का हिस्सा, वो बन सकते हैं। इस पेज पे आकर के यू कैन गेट टू नो ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो लोकल चैप्टर से रिलेटेड है, सारे इनिशिएटिव्स जो कि हैं। मैंने एक चीज और यहाँ पे बहुत अच्छी मैं बता दूं आपको कि जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए इन्होंने एक स्पेशल पेज बनाया, उनके लिए मटेरियल, उनके लिए बहुत सारी स्कैफोल्ड टेक्निक्स, ये सब कुछ भी ये दे रहा है। जैसे इफ आई क्लिक ऑन दिस पेज गेट प्रिपरेशन का,
ये देखिए गेट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, इस पे इन्होंने बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस। और अगर आप एनपीटीई के वीडियो लेक्चर्स की बात करें, अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखे तो देखिए, एक्सीलेंट वीडियोस। उन वीडियोस को यूज करके आप अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी हेल्प दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को बताना तो टीचर्स को ही पड़ेगा। सारे वीडियोस पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, एनपीटीईएल की साइट पे भी जाके मिल जाएंगे, नहीं तो स्वयं प्रभा की साइट पे मिल जाएंगे, नहीं तो सीधे यूट्यूब पे जाकर मिल जाएंगे। तमाम जो आईआईटीज के प्रोफेसर हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो एपेक्स बॉडीज हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनकी मदद से एनपीटीईएल ने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स, लाखों की तादाद में वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, जो कि यूट्यूब पे उनके जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उस पे मिलते हैं। और उन वीडियोस को देख करके अब जो स्टूडेंट, क्योंकि वो वीडियो के फॉर्म में वहां पे पड़ा हुआ है, अब स्टूडेंट अगर उसको आधे घंटे का वीडियो है, उसको वो 3 घंटे में देखना चाहता है, रुक रुक के देखना चाहता है, कर सकता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच these institutions are doing in terms of their initiatives, but the only thing is that हमें awareness होनी चाहिए। तो ये जो गेट प्रोजेक्ट है, दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी हेल्पफुल थिंग, क्योंकि रूरल इलाके जो हैं, जो शहरों में तो फिर भी चीजें हो जाती हैं, बट गांव में मुश्किल होता है, स्टूडेंट सोच भी नहीं पाते, अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ पे क्या मिलेगा। तो उनको बताएंगे अगर, तो ये उनके लिए फिर ये सारे जो कोर्सेज हैं, ये गेट का जो एग्जाम है, इसको क्रैक करना उनके लिए आसान बन जाएगा। तो ये तो हो गया गेट। इसके अलावा जो और इनिशिएटिव्स हैं, इसमें फैकल्टी के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स हैं। देयर आर सेवरल वर्कशॉप्स जो पीरियोडिकली कंडक्ट होती रहती है, उनकी इंफॉर्मेशन भी होती है इस पे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इन्होंने जो और दूसरी तैयारियां हैं, दूसरे जो कोर्सेज हैं, वो सब भी इधर उन्होंने लिस्ट कर रखे हैं। यहाँ एक कैटेगरी बनाई है एनपीटीईएल स्टार्स, मतलब हर एक, आप देखिए हर एक डोमेन में वो बच्चे तो नहीं कह सकते, क्योंकि सब ज्यादातर यहाँ पे हायर एजुकेशन वाले एडल्ट्स हैं, तो वो लोग जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है, उनको ये लिस्ट भी करते हैं। जैसे मैं एक क्लिक करके बताऊं, ये थोड़ी देर में आया पूरे लिस्ट, स्टूडेंट्स का नाम, उनकी फोटोग्राफ, उन्होंने किस कोर्स में क्या किया है, सारा कुछ दिया गया। तो स्टूडेंट की फोटोग्राफ भी आ जाएगी अभी। तो इन्होंने जो टॉपर्स हैं 108, जो शुरू के 108 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक्सेल किया है इन डिफरेंट कोर्स। अब देखिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के हैं और अलग अलग लेवल पे इन्होंने स्वयं पर जाकर के कोर्सेज किए हैं। उनको उनकी सक्सेस रेट के हिसाब, सक्सेसफुलनेस के अकॉर्डिंग लिस्ट करके इधर इन्होंने इनको सेलिब्रेट किया है। इससे क्या होता है, इट इज जस्ट अ मोटिवेटिंग फैक्टर, जिससे कि जो ये स्टूडेंट्स हैं इनको ये मोटिवेटेड होंगे, रहेंगे और ये और आगे चल करके कोर्सेज करेंगे। अपना तो फायदा होगा ही, इनका खुद का तो फायदा होगा ही, बट इट इज ऑल्सो द वे इन विच दिस प्लेटफॉर्म इज एनरिचिंग इटसेल्फ। जब तक इंस्टीट्यूशन की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक उसके स्टूडेंट्स कुछ अच्छा नहीं करते। स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो कॉलेज क्या कर देगा। सो दिस इज व्हाई द इंस्टीट्यूशन आर सेलिब्रेटिंग द स्कॉलर्स इटसेल्फ। तो ये चीज को भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है और इसमें कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी डाले हुए हैं। एनपीटीईएल का जो ये ब्लॉग, यहाँ पे इन्होंने काइंड ऑफ वीडियो है जो दे रखा है, जो कि वीडियो है बट इट्स नॉट हैविंग एनी साउंड। ये जो उनके सेलिब्रेटेड टीचर्स हैं जिनके कोर्सेज इधर मौजूद हैं, उनके ग्लिम्स है, प्लस वो जो पूरा प्लेटफॉर्म है जिसपे अभी आप देखेंगे ये आईआईटीज का, बेसिकली आईआईटी चेन्नई का, इस पे तो मेरे वीडियोस भी हैं, मेरे वो 5 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उधर है, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। वहां पे जा करके आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, दिखा देती हूँ इसके साथ ही। जैसे कि अगर आप जो ये चीज देख रहे थे, सीधे यूट्यूब पे चले गए, अगर यूट्यूब, और इसमें आप अगर यहीं से डाल देते हैं यूट्यूब, बस
IIT चेन्नई, ये आ गया IIT मद्रास। ये IIT मद्रास का जो होम पेज है, और इसमें इनके जो डिफरेंट वीडियोस हैं, ये सारे जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, दीज आर लाइक सो गुड। अगर आपको कुछ कोई ऐसी चीज है जो पढ़ाने में दिक्कत होती है और आपको कंटेंट चाहिए, या कभी कभी हम लोग फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड से पढ़ाते हैं, उसके लिए हम पहले मटेरियल देना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, उस केस में भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा ये जो चैनल है स्वयं, ये स्वयं प्रभा IIT मद्रास के का जो ये जो चैनल है, डिफरेंट चैनल देखिए, स्वयं प्रभा पे 34 चैनल्स हैं। 34 में से कुछ चैनल्स जो है NCERT के पास है, जो कि PME विद्या चैनल्स कहलाते हैं। एक क्लास के लिए एक चैनल, तो 12 चैनल्स तो NCERT के पास है। इसके अलावा बाकी के जो बचे हुए चैनल्स हैं वो सबके सब डिफरेंट IITs के पास हैं, कुछ और दूसरे जैसे जामिया के पास भी कुछ चैनल हैं, NIUS के पास है, इग्नू के पास है। तो वो सारे जो चैनल्स हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास है, और ये इंस्टीट्यूशंस जो कंटेंट डेवलप करते हैं वो उन चैनल्स पे आते हैं। तो जो IIT मद्रास के चैनल्स है ना, इस पे आप जाएंगे, यहाँ ये रही प्लेलिस्ट, और इसमें आपको ये जो मैंने बताया ह्यूमैनिटीज के भी, हम ये भी मेरा ही है, 28 इसमें है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 28 वीडियोस की पूरी लिस्ट है। दिस वन इज फॉर द फर्स्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट 1, दिस वन इज कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, ये भी मेरा है। और इसके अलावा एक IIT कानपुर के चैनल पे भी पड़ा हुआ है पूरी लिस्ट। अब जैसे अगर इसे खोलती हूँ मैं इस प्लेलिस्ट को, तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट के अंदर जो 28 के 28 वीडियोस हैं, वो तमाम डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, उनके ऊपर, इनमें से किसी के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगा। और इस तरह से सारे के सारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे, ये अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट हैं, ये लोग अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट हैं, और इनके जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। So this is a platform which is related to Swayam. It's basically Swayam Prabha. तो अभी एक ये भी वे है, NPTEL ये भी तरीके से कोर्स डेवलपमेंट की प्रोसेस कर रहा है कि वो पहले वीडियो लेक्चर्स बनवा ले रहा है, फिर बाद में उस पूरे के पूरे जो सेट है वीडियो लेक्चर्स का, उसका टेक्स्ट मटेरियल बन जाएगा, और उसको भी वो कोर्स की तरीके से ऑफर कर देंगे। तो ये एक तरीका है जिसमें जो स्वयं अथॉरिटीज हैं वो आगे चल के, क्योंकि सब कुछ सरकार का ही है, भारत सरकार का है, तो जो ऐसा नहीं है कि हम स्वयं को और स्वयं प्रभा को आइसोलेशन में देखेंगे, दोनों चीजें मिली हुई हैं। कहीं एक जगह जाकर के कोई देयर विल बी अ पॉइंट वेयर द स्वयं प्रभा इज आल्सो गोइंग टू गिव सम like the content which is created for Swayam Prabha is also going to come to Swayam platform in future. So ये तो सारी बातें हो गई हैं, इससे अलग हटके मैं वापस आ जाती हूँ जिस पे थीम है। तो ये जो था, जो मैं आपको बता रही थी, दिस वाज रिलेटेड टू दी लोकल चैप्टर्स। लोकल चैप्टर में कोई भी शामिल हो सकता है। अगर आपको देखना है कि आपका कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूशन लोकल चैप्टर का हिस्सा है कि नहीं है, तो उसके लिए यू कैन कम अप टू दिस प्लेस ओनली। और यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट भी है, LC कॉलेज लिस्ट ये भी दी हुई होती है, आप उस पे जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ गई, यहाँ पे जाने के बाद सर्च करना है, सर्च करने में अपने कॉलेज का नाम डालना है। मैं अपने का डाल देती हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये आ गया Jamia Millia Islamia is already a part of the local chapter. So you can see that there is an ID which we have got.
और ये एड्रेस दिया हुआ है. दिस एड्रेस इज basically for of the faculty member. This is the faculty member who is the like the single point of which is the person who is the SPOC, Professor Sajjad Ahmed Loan. And because this fellow is related to faculty of engineering, वो faculty of engineering क्या है हमारी यूनिवर्सिटी के, तो इसलिए उनका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है. और इस पूरे के पूरे लोकल चैप्टर को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दे आर द IIT कानपुर. तो दैट्स वाई वहां पे वो कोऑर्डिनेटेड बाय IIT कानपुर लिखा हुआ. ऐसे ही अगर आपको ये जानना है कि आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूशन लोकल चैप्टर का मेंबर है कि नहीं, तो वो आप यहाँ पे डाल करके, नाम डाल करके पता लगा सकते हैं. और अगर नहीं पता नाम आता है वहां पे, तो आप अपने इंस्टीट्यूशन के हेड से बात करके यू कैन इवन गो फॉर रजिस्टरिंग एज अ लोकल चैप्टर. तब उस केस में किसी एक टीचर को सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है SPOC, वो बना दिया जाएगा. और वो व्यक्ति ही फिर एक तरह से दूसरे टीचर्स और जो कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी है या कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूशन है, उसके बीच में संपर्क का माध्यम होगा, मीडियम होगा उन दो लोगों के बीच में, जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है और बाकी के जो टीचर्स हैं. तो बाकी के टीचर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा. जो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्यक्ति है, उससे आप बात करेंगे, वो फिर आगे बात को लेके जाएगा, तो उससे थोड़ा काम करना आसान हो जाएगा. ये तो बात हो गई लोकल चैप्टर्स की. इसके बाद देखिए, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप एक्सप्लोर कीजिएगा. क्योंकि वक्त कम है, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं पे एक दो चीजें रह गई है अभी. जैसे कि अब देखिए FAQs हैं. FAQs आप ओपन करके देख सकते हैं. आपके बहुत सारे सवालों का जवाब तो FAQs में ही मिल जाएगा स्वयं से रिलेटेड. एक यहाँ पे एक सेक्शन और है स्वयं प्लस का. स्वयं प्लस ये ओपन किया गया, इसकी शुरुआत की गई है इसलिए ताकि जो लोग स्किलिंग करना चाहते हैं, दिस इज बेसिकली फॉर वोकेशनलाइजेशन एंड स्किलिंग. वो लोग जो कि वोकेशनल एजुकेशन में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए ये खास तौर पे बनाया गया है. तो स्वयं प्लस पे आप जब जाते हैं, वहां पे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, ये स्किल इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जिनको करके आप अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, आप अपना एक बना सकते हैं, जिससे कि आप अपनी जीविका चला लेंगे, चलाने में सक्षम हो जाएंगे. उस तरह के जो कोर्सेज हैं, उस तरह की जो चीजें हैं, वो सब आपको स्वयं प्लस से मिले. दिस इंफॉर्मेशन आई थिंक इज इनफ रिलेटेड टू दी प्लेटफॉर्म. एक चीज जो मैं जरूर बताना चाहूंगी, वो मॉड्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और उसके लिए मुझे जरा सा जैमबोर्ड को खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि क्लैरिटी नहीं होती कि जो स्वयं के ऊपर जो मॉड्यूल्स हैं, वो हम कैसे बनाएं. एक कोर्स में, मॉड्यूल में, और 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है, वो क्या है, इस चीज के बारे में थोड़ी सी मुझे जानकारी जो देनी है, उसके लिए चलिए मैं यही चले जाती हूँ. तो देखिए, एक चीज ये क्लियरली बता दूं, मूक या जो स्वयं के ऊपर एक कोर्स है, वो इक्विवेलेंट टू द एंटायर डिग्री नहीं होता. ये चीज आप बिल्कुल क्लियरली याद रखिएगा. अब जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि बीएड ले लेते हैं यहाँ पे. ये बीएड जो है, दिस इज अ कोर्स विच इज रन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द, ज्यादा अच्छा रहेगा. बीएड एक कोर्स है, ठीक है. अब इस कोर्स को अगर मुझे स्वयं पे, मैं सोचूं कि मैं स्वयं पे से पूरा बीएड कर लूंगी, ये नहीं पॉसिबल है. ये याद रखिए कि बीएड का जो कोर्स है, अगर उसके अंदर 10 पेपर है, मान लीजिए 10 पेपर है, ऐसे करके मैं 10 अगर ये लाइन बना दूं, तो इन 10 लाइंस में अगर ये लाइन मैंने क्यों बनाई, वो 10 पेपर्स जो बीएड के कोर्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं. ये इसको ऐसे लिख देते हैं,
पेपर 1, ये पेपर 1, ये पेपर 1 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये पेपर 1 है। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 10 पेपर्स यहाँ पे हैं। अब क्या होगा कि ये जो पेपर है ना, इसमें इन 10 पेपर्स में से कोई 4 पेपर्स स्टूडेंट कर सकता है एज अ मूक। ये एक पेपर अपने आप में एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स बनेगा। तो ये जैसे पेपर है, इस पेपर को अगर मुझे इस पेपर को ही मुझे मूक में पेपर 1 मूक 1, ये अपने आप में एक मूक बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा बीएड कोई मूक में कर ले। तो पेपर 1 विल बी द मूक 1। और अब पेपर 1 के अंदर को अगर मैंने ट्रांसफॉर्म किया मूक 1 में, तो अब इस पेपर के अंदर वो 35-40 टॉपिक्स जो पढ़ाए जाते हैं उनको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। यहाँ से इस पेपर के अंदर मान लीजिए कोई 40 टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ कोई 40 टॉपिक्स। तो ये जो 40 टॉपिक्स है, ये 40 टॉपिक्स मॉड्यूल्स बनेंगे। तो देयर विल बी 40 मॉड्यूल्स। ये जो 40 टॉपिक्स हैं ये 40 मॉड्यूल्स बन जाएंगे। मॉड्यूल्स, ये 40 मॉड्यूल्स यहाँ पे बनेंगे। ये जो 40 मॉड्यूल्स हैं, अब इन एक से लेके 40 तक के जो मॉड्यूल्स हैं, हर एक मॉड्यूल अपने आप में कंप्लीट होगा, अपने आप में 4 चीजें रखेगा। पहला जो, जैसे 40 मॉड्यूल्स में से पहला जो मॉड्यूल है, अगर मैं इसमें से एक मॉड्यूल नंबर 1 ले लेती हूँ, ये है हमारा मॉड्यूल 1 M1। मॉड्यूल 1 जो है, ऐसे करके 40 होंगे, याद रखिएगा, ये ऐसे 40 ऐसे करके 40 मॉड्यूल्स इसमें है। मॉड्यूल 1 जो है, इस मॉड्यूल 1 के अंदर 4 चीजें होंगी। मॉड्यूल 2 में भी 4 होगा, ऐसी हर एक मॉड्यूल में 4 चीजें होंगी। ये पहला जो है, दिस इज कंसिडर्ड एज द क्वाड्रेंट 1। दिस क्वाड्रेंट 1 इज गोइंग टू हैव अ वीडियो लेक्चर और अ वीडियो कंटेंट। मॉड्यूल 1 के अंदर वीडियो कंटेंट होगा, जो कि इसको हम कह देते हैं वीडियो। दिस विल बी अ वीडियो जो कि 30 मिनट्स अराउंड होगा। मगर पूरा का पूरा एक वीडियो 30 मिनट का हो, ये जरूरी नहीं। ये हो सकता है कि 30 मिनट्स का के आप के अंदर आप 3-4 वीडियोस बना दें। तो कोई वीडियो 5 मिनट का है, कोई वीडियो 10 मिनट का है, कोई अगेन 5 मिनट का है। ऐसे करके आपने 30 मिनट्स कवर कर दिए। छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं। ये क्वाड्रेंट 1 हो गया। क्वाड्रेंट 2 जो है, दिस इज क्वाड्रेंट 2। दिस विल बी अ टेक्स्ट। दिस टेक्स्ट इज गोइंग टू बी ऑफ 3500 वर्ड्स। और जो टेक्स्ट है उसको भी आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर इट शुड बी 3500 वर्ड्स का टेक्स्ट पार्ट होना चाहिए। और अब जो उसके साथ सजेस्टेड फर्दर रीडिंग्स हैं, जो भी लिंक्स हैं जो कि स्टूडेंट को अप्रोच कर सकता है फर्दर रीडिंग के लिए, वो सबको हम टेक्स्ट के अंदर ही रखते हैं। पहले वो एक अलग क्वाड्रेंट होता था, लेकिन अब क्या हो गया कि जितने भी उसके साथ एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है वो सब उस टेक्स्ट के अंदर ही हमें डाल देना होता है। उसके बाद ये होता है क्वाड्रेंट नंबर 2, 3500 वर्ड्स का टेक्स्ट। फिर इसके बाद जो क्वाड्रेंट नंबर 3 है, दिस क्वाड्रेंट नंबर 3 इज द लिस्ट ऑफ असेसमेंट क्वेश्चंस। ये होंगे क्या क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं, तो these will be the questions। ये questions जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। देखिए पहले क्या था कि हमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके 4 ऑप्शन वो देने पड़ते थे, सो M1 में। अब क्या है, आप किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दे देना पड़ता है। वो यूज होते हैं बीच बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। ट्रू फॉल्स टाइप दे सकते हैं, मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं, 4 ऑप्शन वाला तो दे ही सकते, मतलब किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्लोज एंडेड वाला जिसका आंसर पता, मतलब जिसका आंसर जो है वो डेफिनेट, वैसे वाले। और इसके अलावा हर एक मॉड्यूल के अंदर हमें 2 से लेके 4 तक जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी देने होते हैं।
क्यों देने होते हैं? क्योंकि जब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो जो असेसमेंट होता है, कोर्स का असेसमेंट होता है, बीच बीच में पीरियोडिक टेस्टिंग होती है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो एनटीए क्या करती है कि जो टीचर्स ने जो कोर्स डेवलपर है उसने जो असेसमेंट क्वेश्चंस दिए हैं उन सबको वो असॉर्ट करके क्वेश्चन पेपर को डेवलप करवाती है। तो क्वेश्चंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज अ कोर्स क्रिएटर आपको पता है ना कि आपका जो कोर्स है उसमें क्या असेसमेंट करना है, किस सवाल को पूछना है, कब पूछना है, किस मॉड्यूल के साथ कौन सा सवाल रिलेटेड है। तो वो सवाल आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी देने पड़ते हैं। और जो आपका ये वाला है क्वाड्रेंट नंबर 4, दिस इज नाउ द डिस्कशन फोरम। व्हाट इज डिस्कशन फोरम? डिस्कशन फोरम में वो जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने दिए ना, जिनके ऊपर बहस की जा सकती है, जिस पर डिस्कशन किया जा सकता है, इस तरह के टॉपिक्स देने पड़ते हैं, इस तरह के हमें सवाल वहां पे बना के देने पड़ते हैं। डिस्कशन फोरम पूरे कोर्स के दौरान चलती रहती है। क्या होता है उसमें? ड्यूरिंग द डिस्कशन फोरम द कोर्स डेवलपर poses a question and which is being discussed among the people जो कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बीच में उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा होगा। वो डिस्कशन के बिना पे जो टीचर है वो ये पता लगाता है कि लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं। मान लीजिए उस डिस्कशन के दौरान टीचर को कोई फीडबैक देना है, चैट पे पड़ा हुआ है सारा डिस्कशन, तो वो वहां पे जाके अपना फीडबैक दे देता है। एक और भी चीज होती है, जो स्वयं में असेसमेंट होता है, फाइनल एग्जाम तो होता ही है, लेकिन आपने जो कोर्स पूरा किया है उस दौरान आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट के क्वेश्चंस भी आपने एडमिनिस्टर किए, आपके ऊपर किए गए, उनको भी आपने आंसर किया, आपने डिस्कशन फोरम में भी हिस्सा लिया। उन सब के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि परसेंटेज कितनी दी जाए। ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम दे दिया और आपका मार्क्स उसमें चला गया। आपकी जो परफॉर्मेंस है, इट्स नॉट लाइक दैट वन वे कि बस एग्जाम देना है, लिखना है एग्जाम, और पूरी परफॉर्मेंस कोर्स के दौरान आप कितने एक्टिव थे। वीडियो लेक्चर्स आपने सिर्फ ओपन किया और बीच में छोड़ दिया, या आधे घंटे के लेक्चर को 10 मिनट में बढ़ा करके देख लिया, कुछ ऐसा किया गया है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी शार्प एंड वाइज इनफ टू मेक आउट थिंग्स कि क्या कैसे स्टूडेंट ने जो है वो अप्रोच किया है कोर्स को। वो सारी चीजें जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें आती रहती है स्टूडेंट ने, और वो सब मशीन के जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो ही जज कर लेता है, और उसके बेसिस पे जो फाइनल स्कोरिंग है वो भी, उसमें भी उसका हिस्सा होता है कि आपने कोर्स को किस तरह से किया, कितना सीरियसली किया है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉलोड इन एनी कोर्स, एनी MOOC. नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कैन बी डिफरेंट। किसी कोर्स में कुछ बहुत छोटा कोर्स है तो उसमें नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कम भी हो सकते हैं। बजटिंग उसी के हिसाब से होती है, तो 40 के बियॉन्ड जाते हैं तो बजटिंग में दिक्कत हो जाती है, बजट नहीं मिलता उससे ऊपर का, तो कुछ इसीलिए जो है वो ये रखा जाता है। भाई उससे कम कम मॉड्यूल्स हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा होगा तो परेशानी होगी। तो ये तो था उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जिसके बेसिस पे ये पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट ऑफ MOOCs की प्रोसेस होती है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको फिल करना पड़ता है सबसे पहले, ये फर्स्ट स्टेप होता है अगर आप MOOC ऑफर करना चाहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप भरेंगे, लेकिन उसके भी पहले एक काम करना होता है कि आप कुछ कंटेंट डेवलप कर लीजिए। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरेंगे, जब वो आपसे पूछेंगे अच्छा आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि आप MOOC ऑफर करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कुछ सैंपल नहीं होगा तो मुश्किल होगी। तो इट्स ऑलवेज गुड टू डेवलप समथिंग फर्स्ट एंड देन यू कैन गो फॉर डेवलपिंग लाइक फिलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एंड इफ द सैंपल विच जो आप सबमिट करेंगे उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन के बाद अगर ये पाया जाता है कि नहीं आप बिल्कुल केपेबल हैं MOOC डेवलप करने के लिए, कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन, जैसे कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो टीचर है उसको एक स्पेसिफिक लेवल पे पढ़ाते हुए होना चाहिए,
वो गाइडलाइंस बहुत प्रॉपरली दी हुई होती हैं। जितने भी नेशनल बुक कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी, वहां से उस सबको देख करके then you can fill your expression of interest. If your expression of interest is found to be suitable, then the course development process starts. आपको वो project दे दिया जाता है and then you can work. You can work alone as well. You can collaborate with the people of your area and you can form a team. उस team में भी आप अपना काम कर सकते हैं. So I think अभी मैं सवालों के लिए थोड़ा 5 मिनट रख लेती हूँ. आपके जो भी सवाल हो प्लीज पूछिए. Participants, please ask the question to resource person. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, I want to ask a question. Yes, yes, you can. मैम जैसे कि अगर हम कोई कोर्स डेवलप कर रहे हैं और हमारी इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, क्लास में लेनी है, तो वो कैसे मैनेज करना होता है? उसके लिए क्या हमें कुछ प्रोविजंस मिलते, कैसे 24/7 कैसे? सी जो आपके रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो 20-25 क्लासेस, जो 20-22 क्लासेस लेनी है, एसोसिएट हैं तो ऐसे 18-19 क्लासेस लेनी है, वो तो आपको लेना पड़ेगा. और जैसे अगर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, आप एक मूक डेवलप करना चाहते हैं और या फिर इस तरह का कुछ भी, बुक लिखते हैं हम लोग, पेपर्स लिखते हैं, जाहिर है जो हमारे पास वो 24 घंटे हैं एक दिन में, उसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हमें अपना ही लगाना पड़ेगा. सो ऐसा कुछ नहीं कि छुट्टी मिल जाएगी आपको. क्लियरली वहां मेंशन्ड है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी लीव, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा फंड, आपके यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा. आपको अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरने के बाद आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो यस, यू विल गेट अ फंड विच इज गोइंग टू बी यूज. आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है बाद में, तो वो आपको बजट जरूर मिलता है, लेकिन टाइम आपको अपना लगाना पड़ेगा. आपका खुद का मोटिवेशन होना चाहिए. आप इंटरेस्टेड हैं तो इट्स योर ओन विल. तो हम लोगों ने तो किया है बहुत सारा काम और यही सोच के किया है कि अगर मौका मिला है तो कर सकते हैं, करने की ऊपर वाले ने कुव्वत दी है तो कर लें. तो यही है बस. थैंक यू मैम, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था मैम और बहुत डाउट्स मेरे क्लियर हो गए, बहुत अच्छा लगा. मैम आई वांट टू आस्क समथिंग. जी जी पूछिए मैम. मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इफ वी हैव सम स्टूडेंट्स and so many students and some few students are wanted to do their some papers from the SWAM or any online mode. ठीक है. And they want to take the permission of university individually or university gave the permission to the colleges. ठीक है मैम, मैं समझ गई आपका सवाल. आपके कॉलेज से कुछ बच्चे मूक कोर्स करना चाहते हैं, अगर वो उसको अपने क्रेडिट ट्रांसफर में अपने रिजल्ट का पार्ट बनाना चाहते हैं, उस केस में वो कोर्स को आपकी यूनिवर्सिटी ने लिस्ट किया हो. जैसे अगर मान लीजिए बीए कर रहा है बच्चा, बीए इन इकोनॉमिक्स कर रहा है, बीए इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनके ऊपर स्वयं पे मूक अवेलेबल है, उन मूक्स को आपकी यूनिवर्सिटी ने बीए इकोनॉमिक्स के कैटेगरी के अंदर लिस्ट किया होना चाहिए अंडर CBCS. वही कोर्सेज को आपके स्टूडेंट्स ले सकते हैं. XYZ किसी भी कोर्स को नहीं ले सकते. क्योंकि क्यों, इसका पीछे लॉजिक क्या है? अगर यूनिवर्सिटी ने उसको वहां पे लिस्ट किया है, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी ने इस चीज को चेक किया है कि जो रेगुलर करेगा बच्चा पढ़ाई करेगा, उसका जो सिलेबस है वो सेम है कि नहीं. अगर वो सेम है मूक के कोर्स का, तो फिर यहाँ से करे या वहां से करे, एक ही बात. वहां से करके अपना मार्क्स, NTA का मार्क्स उसको दे देगा, वो मार्क्स लाके यहाँ जुड़वा ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसलिए बच्चे करना चाहते हैं तो बच्चों को आपको ये बताना है कि यू सी दैट वेदर इट इज लिस्टेड अंडर CBCS और नॉट. CBCS में वो लिस्टेड होना चाहिए. ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम. वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन मैम. हेलो मैम. जी यस सर.
मैम सपोज नेपटन या मोक्स में मतलब ये जो कंटेंट बनाने के लिए मैम क्या हम लोग रीजनल लैंग्वेज में भी बना सकते हैं? यस यस, वैसे रीजनल लैंग्वेज में जो नया कंटेंट है ना सर, अभी तक जो स्वयं का रूल है वो ये है कि दे क्रिएट द बेसिक कंटेंट इन इंग्लिश एंड देन दे गो फॉर ट्रांसलेशन, लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कराते हैं. फॉर दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस दे आर गोइंग थ्रू द लोकल चैप्टर्स और दे हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशंस विद सीडैक पुणे एंड ऑल. वो लोगों के थ्रू जो रीजनल लैंग्वेज में भाषाओं में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है वो होती है. तो आप अगर किसी भाषा में काम करना चाहते हैं तो आप स्वयं अथॉरिटीज से लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए में अप्लाई कर सकते हैं. जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप काम करना चाहते हैं और मान लीजिए स्पेशली आप किसी एक भाषा में उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो वाला कोर्स जो स्वयं पे है वो आपकी वाली भाषा में नहीं है. अगर देन यू कैन ऑफर योर सर्विसेज फॉर ट्रांसलेशन. थैंक यू मैम. थैंक यू. I think, ma'am, the time is up because there would be some other sessions. So thank you very much, Dr. Adam Thank Khan. you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Wonderful informative session. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Inviting me, ma'am. It's always a pleasure. Excuse me, ma'am, may I ask? थैंक यू वेरी हाँ, मच. या क्या जल्दी से पूछे बेटा, टाइम हो गया, जल्दी से पूछे. मैम बस एक रिक्वेस्ट थी, मैं ये जानना चाह रही थी मैम कि अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अलाउड है कि दे कैन प्रिपेयर देयर कोर्स फॉर दिस वेब. तो अभी ऐसा नहीं है कि हर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो या स्टेट यूनिवर्सिटी में हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग इन सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, ठीक है, तो इस तरह के लोगों के लिए क्या कोई इंतजाम नहीं है? मैं आपका सवाल समझ गई मैम. आप अगर जो सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं दे कैन लियाजन विद द इंस्टीट्यूशंस जिनको इजाजत है. जैसे कि अगर आपके आसपास एएमयू है, एएमयू को ऑलरेडी परमिशन मिली हुई है, आईएनआई में भी एएमयू को लिस्ट कर दिया गया. तो आप जो एएमयू के लोग कोर्स डेवलप कर रहे हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं, आप कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑथर. कोर्स के में जो मॉड्यूल है आप उसमें से 4-5 मॉड्यूल सेलेक्ट करके लिखने के लिए ले सकते हैं. तो इस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. जी ओके, चलिए, ठीक है मैम. ठीक है, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन भी आ गए होंगे. हाँ, जी चलिए. विदाउट टेकिंग मच टाइम. थैंक यू मैम. ओके, गुड बाय. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Dear participants, we Thank have you, next ma'am. session at 10:45 a.m. So please take tea and other fluids because the summer is going on and at a peak. So we will meet at 10:45. Okay, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. ओके मैम. ओके मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am.